Good morning, students. In last class, we had discussed about biasing of semiconductor PN junction diode. Okay, biasing of PN junction we had discussed in last class, and in that case, we had discussed about two characteristics: forward biasing, and forward bias characteristics. The graph of forward bias, graph between voltage and current V and I, was VI characteristics of forward bias, and also we have discussed reverse characteristics of PN junction diode, or you can say graph of potential V and current I of reverse bias connection or reverse biasing of PN junction semiconductor diode. Okay, and if I combine these two graph, forward bias and reverse bias. Okay, if I combine these two graph, forward bias and reverse bias, forward biasing and reverse biasing. In forward bias, we have our graph like this. This is our current I and this one is voltage V. ये V वोल्टेज होगा, करंट I होगा, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो ग्राफ हो क्या आएगा, दिस वन. This one is the graph of forward bias. This current will be in milliampere, voltage will be in volts. Unit of voltage will be volts in this graph. And if we discuss about reverse bias, this one is forward bias and this is reverse bias. This reverse bias graph is just like this, and in this graph you can notice that this current is independent of potential. Okay, this current will flow independent of potential. There is no difference of potential if you increase this potential or you can decrease. Okay, and this one is current I in microampere. This is milliampere, this will be in microampere. Microampere means 10 to the power minus 6 of ampere. This milliampere is 10 to the power minus 3 of ampere. Okay, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो पॉइंट था ये था आपका VB, ब्रेकडाउन पॉइंट था, एंड दिस पोटेंशियल इज नॉन एज ए ब्रेकडाउन पोटेंशियल. ओके, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे बताया भी था हमने कि व्हेन यू इंक्रीज this reverse bias potential beyond a certain limit, then most of the covalent bonds of that particular semiconductor will break down and electron hole pair will be generated, and due to that electron hole pair a large amount of current will flow through this PN junction diode, that PN junction. And if large amount of current will flow through this PN junction, then you can say there will be ब्रेकडाउन ऑकर्स. ब्रेकडाउन हो जाएगा वहाँ पे, जो डिवाइस हो दोबारा काम में लेने लायक नहीं रहेगा, वहाँ पर हम इस डिवाइस को खत्म हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ब्रेकडाउन पोटेंशियल कह रहे हो. अगर हम इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका फॉरवर्ड बायस का आ जाएगा और ये ग्राफ आपका रिवर्स बायस का आ जाएगा. This is VI characteristic. This is known as a VI characteristics of PN junction diode. VI characteristics of PN junction diode. This is how we can relate this V in volts. This is also V in volts. This polarity is opposite. That's why this is positive direction. This is in negative direction. This is current milliampere range, and this is also current but in microampere range. Okay, and this one is our breakdown potential, where current increases suddenly. करंट जो है सडन इंक्रीज होगा, यहाँ पे करंट का चेंज आएगा. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से इसको
डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये आपका एक रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया इस साइड का, ये आपका रिवर्स बायस का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये ग्राफ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान सकते हो। इस चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की है, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस के ग्राफ की। और जो रिवर्स बायसिंग है वो क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, उन दोनों में जंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। जंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, जंक्शन कैसे बिहेव करेगी, ये सब आपको हमने पहले ही बताया था, अब फिर से बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो फॉरवर्ड बायस जब होगा तो पी साइड को, पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, ठीक है। पी टर्मिनल को पॉजिटिव से, एन टर्मिनल को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस होगा। डिप्लीशन लेयर वहाँ पे डिक्रीज होगी, थिन होगी, पतली हो जाएगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उस जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। और दैट पॉइंट, दैट वोल्टेज जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं वी नी वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, बिल्ट अप वोल्टेज भी बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं इसके साथ। फिर इसके बाद है यहाँ पर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जब पी टर्मिनल से आप नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो, एन साइड से आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो, और यहाँ पर आपके साथ कंप्लीटली ये जो ग्राफ है ये इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं हो पाएंगे, केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब फ्लो होंगे तो उसके कारण यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होगी इसके अंदर, रिवर्स बायस के अंदर। कंप्लीट डिस्कशन के लिए लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि लास्ट वाला जो लेक्चर है वही इसका मेन डिस्क्रिप्शन है, मेन एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे से, बहुत एक बढ़िया वे में आपको ये बताई हुई है। इसके बाद हम आगे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कि पीएन जंक्शन डायोड की अपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एंड दैट एप्लीकेशन फर्स्ट इन आवर सिलेबस वी हैव वन एप्लीकेशन लाइक रेक्टिफायर, okay. In that rectifier we have two kinds of rectifier, one is half wave rectifier, second one is full wave rectifier, okay. So that we will discuss in next segment of this lecture. So students, our next topic of this chapter is rectifier, okay. Rectifier is a device which can convert alternating current into direct current, okay. AC to DC current को जो convert करेगा, that device is known as a रेक्टिफायर, ओके। AC टू DC, इतना ध्यान रख लो। AC कैसे फ्लो होती है आपको पता है, AC इस डायरेक्शन से फ्लो होती है, दोनों पोलरिटी होती है, इसकी पोलरिटी अल्टरनेटिवली चेंज होती है। इस AC करंट को जो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, इस टाइप की करंट में कन्वर्ट कर दे, या फिर ऐसी करंट में कन्वर्ट कर दे जो पोलरिटी चेंज नहीं करे, जो सेम पोलरिटी का डिवाइस हो, सेम पोलरिटी में, तो यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है ऐसा एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसकी पोलरिटी को कन्वर्ट कर देगा। पोलरिटी जो चेंज हो रही है इसको ये चेंज नहीं होने देगा, कौन, रेक्टिफायर। तो दैट रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट AC करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इट वी कैनॉट से इट कैन कन्वर्ट डायरेक्ट करंट, वी कैन से इट कैन कन्वर्ट इन पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, ओके। क्या, pulsating direct current, okay. So this is very important, this term is very important, pulsating direct current, okay. So just like we will see in our this segment, then there are two types of rectifier. One is half wave rectifier and the second is full wave rectifier. First is half wave rectifier, second is full wave rectifier. Then first of all we will discuss about half wave rectifier. After half wave rectifier we will discuss about full wave rectifier, okay. One by one if I explain, then it is very easy to understand for you and for others also, okay. So first of all half wave rectifier. Half wave rectifier, it means this is a type of rectifier which can convert half of the wave in pulsating DC, okay. Just again I am repeating, this is a rectifier which can convert half of the wave
in pulsating DC. That rectifier is known as a half wave rectifier. ओके केवल जो कंप्लीट वेव है उसमें से हाफ को कन्वर्ट कर देगा और जो बची हुई रिमेनिंग हाफ है उसको ये खत्म कर देगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. शॉर्ट में मैं इसको HWR भी लिख सकता हूं. ओके तो नाउ लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके वी हैव वन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड यू ऑलरेडी नो इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil. This is secondary coil S, this one is primary coil P. Number of turns in secondary coil is less than the number of turns in primary coil, and there is a linkage between these two. This represents the linkage कि how this primary coil is linked with this secondary coil. Okay, and then we have V input. ये इनपुट पोटेंशियल है एंड दिस इनपुट पोटेंशियल विल बी लाइक दिस. दिस इनपुट पोटेंशियल विल बी लाइक दिस. मैं इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूं क्योंकि इतना ज्यादा अपने पास ये जगह नहीं मिलेगी यहां पर इसको कंप्लीट करने के लिए. अभी ठीक है. ओके दिस इज इनपुट V इनपुट और यू कैन से अल्टरनेटिंग पोटेंशियल AC. ओके तो दिस इज द इनपुट एंड नाउ इन सेकंड केस वी विल डिस्कस इट्स आउटपुट साइड. दिस वन इज इनपुट साइड एंड दिस कंप्लीट दिस असेंबली और दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए ट्रांसफॉर्मर. Then we have one PN junction diode here. This is PN junction diode, and then we have here one load resistance. This load resistance can be anything, just like load क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. जैसे मान लो एक सप्लाई वोल्टेज अपने पास आ रहा है, तो सप्लाई मतलब जो सोर्स हमें दे रहा है, जो बैटरी हमें दे रही है, जो सरकारी जो बिजली है वहां से हमारे पास आ रही है, तो दैट इज सप्लाई. बट इफ वी कंज्यूम समथिंग we will connect our bulb, refrigerator, TV, fridge, आपके ये वॉशिंग मशीन, फैंस, ये सारे क्या है, ये लोड है. ओके सप्लाई से जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो कौन होगा, लोड होगा. तो यहां से जो करंट आएगी उसको कंज्यूम कौन करेगा, करंट इसके थ्रू फ्लो होगी, तो ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. देखो यहां पर आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये एक लोड रेसिस्टेंस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, और ये क्या हो गया, इनपुट रेसिस्टेंस हो गया. और यहां पर इसके अक्रॉस ये जो वोल्टेज होगा ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा कि इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा. ठीक है. तो अब यहां पर देखो क्या होता है, ये V इनपुट है और नीचे में V आउटपुट बना लूंगा इसका. तो आउटपुट बनाने के लिए पहले हम इस फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे, देन इस सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे, देन इस हाफ साइकिल की बात करेंगे. एक बार अगर अच्छे से कर लोगे उसके बाद में अपने आप इजी वे में सब कुछ हो जाएगा. ठीक है. तो देखो यहां पर क्या आएगा, ये आपके पास फर्स्ट हाफ साइकिल है. जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल यहां से अप्लाई करोगे, जब जो करंट फ्लो होगी तो ऐसे तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे ही तो आएगा. तो आप देखना है जब सबसे पहले ये वाला फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, तो ये जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो इस स्टेप डाउन होके ये क्या करता है, स्टेप डाउन करके इस 230 या 220 जो वोल्टेज आता है, इस 220 वोल्टेज को ये लगभग 10 वोल्ट्स या 5 वोल्ट्स के आसपास कन्वर्ट कर देता है. 10 to 5 वोल्ट
कन्वर्ट कर देता है जितना हमें आगे वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जितना वोल्टेज ये कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट या 10 वोल्ट रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, यहाँ पर इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर का इनपुट भी एसी होता है और ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट भी अपने पास एसी ही होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखो, यहां पर आपके पास सबसे पहले आएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये आएगा इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, एक फर्स्ट हाफ साइकिल में आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मर का आगे वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पी साइड से कनेक्टेड है। ये नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ये एन साइड से कनेक्टेड है। ये एन साइड हो गई, ये पी साइड हो गई, ये डायोड हो गया। ठीक है ना, इसको हम डी रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को। तो ये पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि यहां पर ये कौन सा बायसिंग हो गई, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, अभी ये किसमें है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, जब फर्स्ट हाफ साइकिल है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर होगा तो क्या करंट फ्लो होगी, यहां से क्या करंट फ्लो होगी, यस, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड पी एन टू दिस एन, पी से एन की तरफ करंट फ्लो होगी हमेशा, ये पॉजिटिव से या नेगेटिव से इसलिए। और यहां पर जब यहां से करंट फ्लो होगी तो ये करंट कहां से आएगी, यहां से आ जाएगी। तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डी, डायोड के थ्रू जितनी करंट फ्लो होगी वो इधर से आएगी, इनटू RL। तो ये आपके पास करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ये पोटेंशियल है ये कितना होगा, ID इंटू RL हो जाएगा। और ये क्या इसकी वैल्यू 0 अभी नहीं है, क्योंकि ID की भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपके पास जो ये वाला फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल यहां पर रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट में, ये फर्स्ट हाफ साइकिल रिफ्लेक्ट होगा आपको RL के अक्रॉस। ओके, फिर अगर हम बात करें इसके आगे की, आगे में क्या होगा, ये वाला सेकेंड हाफ आएगा। अब इस सेकेंड हाफ साइकिल के आते ही ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था अब किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। अब देखो यहां पे फिर से देखो एक बार, क्या देखना है, ये नेगेटिव पी से कनेक्टेड है और पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है, नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, एन से पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो नाउ you can say this biasing, this connection of this diode is now reverse bias। और रिवर्स बायस में करंट कितनी फ्लो हो रही थी, नहीं फ्लो हो रही थी, या फिर आप माइक्रो एम्पियर में बता सकते हो कि भी लगभग नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रही थी। तो जब वो करंट फ्लो नहीं हो रही यहां पर, ठीक है, जब यहां पर अपने पास करंट फ्लो नहीं हो रही तो हम इजी वे में बता सकते हैं कि यहां से करंट नहीं है तो ID की वैल्यू यहां पर भी कितनी है, 0 है। जब ID की वैल्यू यहां पर 0 है तो V आउटपुट की वैल्यू 0 इंटू RL इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो आउटपुट पोटेंशियल की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 0 आ गई। तो यहां पर ये जो सेकंड हाफ साइकिल है इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रही है, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही। तो ये ग्राफ किसके, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है ना, हम यहां पे टाइम एक्सिस लेते हैं इसके अक्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नो। तो इतना आएगा। अब थर्ड हाफ साइकिल, अब ये आएगा तो ये आएगा, तो फिर से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ या फिर ये नेगेटिव हुआ तो आप देख पाओगे यहां पर कि दिस P side is connected with positive terminal and this N side is connected now with the negative terminal, and again P for positive, N for negative. This biasing of this current is known as a forward biasing. Again this diode is in forward bias. और जब ये डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस में आ गया तो आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, या ID फ्लो करंट होगी यहां पे, और करंट फ्लो होगी तो फिर से आउटपुट वोल्टेज ID इंटू RL, ID इंटू RL, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। और ये आउटपुट वोल्टेज नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये जब नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज है तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो आपके पास इनपुट का जो वोल्टेज है वो फिर से आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है।
अब इसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे, मींस ये फोर्थ हाफ साइकिल है इसकी। जब इसकी हम बात करेंगे तो फिर से आप देख पाओगे यहां पर कि दिस पॉजिटिव साइड is converted into negative side, negative terminal, and this negative terminal will be converted into positive terminal. And now how we can define this connection? The connection of this PN junction diode, connection of this PN junction diode is like P is connected with negative terminal and N is connected with the positive terminal. And in this connection you can say this diode will be in reverse bias, and if the diode is in reverse bias then no current will flow through this PN junction, through this PN junction diode. And again we can say this ID load current, this diode current will be again 0. जब ये करंट 0 हो गई तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, फिर से 0 पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ पे आप फिर से कह सकते हो कि जो ये वाला हाफ साइकिल है यहाँ पर नेट करंट कितनी आ गई, नेट पोटेंशियल 0 आ गया, ये वाला आगे आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आप देखो ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है, ठीक है। ये इस पूरे हाफ वेव रेक्टिफायर की ये जो सर्किट डायग्राम है इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई, और वर्किंग के साथ यहां पर ये आपके सामने क्या आ गया, इसका डायग्राम आ गया। अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में नहीं आएगा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर मान लो 3 में आए तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो। 1 मार्क्स आपका इस सर्किट डायग्राम को हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो जाएगी, और 1 मार्क्स में आपका ये जो आउटपुट वेवफॉर्म डायग्राम, इसको आप वेवफॉर्म डायग्राम भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है वेव्स कैसे ट्रेवल करती है। वेव जब ट्रेवल करती है तो अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स में फ्लो करती है, ठीक है ना। क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ, इस तरीके से वेव फ्लो करती है। जब वेव ऐसे फ्लो करेगी तो इसको भी आप क्या कह सकते हो, वेव फॉर्म डायग्राम कह सकते हो, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म डायग्राम। अब इस वेव फॉर्म डायग्राम को और देख लेते हैं अपन कैसे होता है। देखो यहां पर कितनी वेव है, ये आपने एक कंप्लीट वेव दी हुई है, कंप्लीट वेव दिया आपने, तो एक इसका हाफ पल्स तो क्या हो गई, आउटपुट में कन्वर्ट हो गई, और हाफ पल्स क्या हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई। जब सेकंड वेव आपने यहां से यहां तक की दी है तो फिर से हाफ पल्स किस में कन्वर्ट हो गई, आउटपुट में कन्वर्ट हो गई, और फिर से हाफ पल्स किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई। मींस हाफ पल्स इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट पल्सेटिंग डीसी। इसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। डीसी तो नहीं बोल सकते क्योंकि डीसी तो आपको पता है डायरेक्ट करंट ये होती है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल जितनी आपकी एक बार करंट फ्लो होगी एक कांस्टेंट वैल्यू उतनी फ्लो होगी, ये होती है डायरेक्ट करंट। लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं है, पोलरिटी चेंज होना ही तो खत्म हुआ है, पल्स तो अभी भी है, तो इसको पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, एक कंप्लीट वेव में से हाफ वेव को ये आगे पास कर पाता है, बाकी हाफ को तो ब्लॉक कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। अब एक चीज और, क्या, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जब हम यहां पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पर आपने एक वेवफॉर्म दी, एक वेवफॉर्म जा रही है तो यहां पर एक ही पल्स आ रही है, तो जितनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उतनी ही इनपुट फ्रीक्वेंसी है। तो एफ आउटपुट इज इक्वल्स टू एफ इनपुट। इसको रिपल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, इसको आप रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो आज के लिए हमारा पास जो ये टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हम इतना ही करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास ये टॉपिक आएगा फुल वेव रेक्टिफायर, विच इज एडवांस वर्जन ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास जो यहाँ पर ये हाफ वेव खत्म हो रही थी, ये जो लॉस हो रहा था यहाँ पर एनर्जी का, इस एनर्जी लॉस को हम बचा लेंगे, इस एनर्जी लॉस को सेव कर लेंगे, और हमारे पास आगे का जो फुल वेव रेक्टिफायर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, ये भी काम में आ जाएगी, ये पूरी को कन्वर्ट कर देगा। कौन, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।